Welcome to this chat show, Face2Face. This is a program which is produced by DME Media School. DME Media School is part of Delhi Metropolitan Education, DME. DME is one of the most prestigious institutions affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University. DME has three schools besides DME Media School. The other two schools are DME Law School and DME Management School. We offer 4 academic programs which include BAJMC, BBA, and then BA LLB and BBA LLB. These are the bachelor's programs, while BBA and BAJMC are 3 years degree program. BA LLB and BBA LLB are the 5-year law programs. DME is one such institution which have always risen up to the occasion, and we always take care of our students, and we do utmost possible for maintaining the quality of education. And if I talk about this quality of education, and if I can refer to what happened during this Corona period, I mean to say since the time this COVID-19 struck in March 2020, since that time, we have been taking a lot of measures to enhance the quality of education. Immediately after the lockdown last year, we started producing some video content for the students. Besides, we started taking online classes, and the classes were further multiplied in the sense that we distributed the classes in further subclasses or subsections so that we can reach out to students in lesser numbers so that this interaction within the class could be possible. We even conducted online internship programs last year because it was not possible for the students to go to media organizations and take up their internship. And during these internship, the students produced a lot of good quality material. So, and when this COVID-19 second wave struck, we again shifted our strategy a little bit, and wherein our focus remained with learning-based education, but along with that, we took steps to keep the students engaged, and we also took steps to empower the students. So this compassion and engagement and empowerment became our motto. So let us see what all DME offers. In DME, we believe in engagement and empowerment of students. And since the time this COVID-19 struck in 2020, we intensified this whole process. For the education sector, it was a big challenge. At DME, our small dynamic team decided to take this challenge head-on. We organize different kind of programs, different webinars wherein the distinguished people from the industry and other walks of life, they are invited to interact with the students. We try to keep them engaged in taking out newsletter, writing stories, editing stories, and not only that, they make posters, they make cartoons, they write pieces for the newsletter. Mentoring cell at DME is a very unique feature in the ecosystem of education. While the subject teachers forge the knowledge domain strongly, it is the mentors who reach out to students in difficult times. During pandemic, when our students faced loss of their loved ones, home isolation, and several other family issues, mentors ensured that students remain cheerful, lively, and stay connected with us. We have ensured that our students are treated with compassion, warmth, and gentle touch. And it has been our endeavor to treat all the academic activities of our students, which includes PSDA, internal assignment, and various other curricular activities accordingly. Research Cell also pays huge emphasis on
interdisciplinary nature of research. In order to promote this, the research centers of the research cell were also motivated to join with each other and conduct research activities for students, faculties within DME and outside DME. While the strong academics and great industry connect is building great lawyers, media persons and managers at DME, we at Mentoring Cell are enabling these future leaders to be compassionate, emotionally strong and resilient for any times to come. We empower the students. All the schools of DME, they have their students council. In DME Media School, this council is part. They organize the program themselves, they take their own decisions and they mobilize the students for all the good cause. Art has the power to unite and connect during the times of crisis, bringing people together, sharing, soothing and inspiring are powers of art, which have been made empathically obvious by the DME cultural societies during the COVID-19 pandemic. By taking different innovative approaches in organizing various virtual competitions and events in which the students of DME have taken part with great enthusiasm and proved that DMEians are unstoppable. Care with compassion is motto of DME. During Corona period, we were always with our students. Their well-being is primary for us. We take care of our students. We met the expectations of the students, of the parents and above all of the industry. The placements this year were better than those of the previous years. DME is committed to supporting its students in all possible ways. Welcome again to Face2Face. And as I was telling you all that this is a chat show, this is a program which has been conceived by DME Media School, and this is some idea which is completely out of the box. In this program, the Dean interacts with the three students. These three students are from different semesters or different years. And before this detailing this program, if I can tell you further about DME Media School, this is not just one program that DME Media School produces. We are also producing another program which is called Vibrant India series, and this we have initiated on the completion of 75 years of India's independence, and in this we are inviting inspiring personalities from different walks of life. Besides that, there are two flagship programs of DME Media School. One is the International Conference ICANN, which we organize every year, and in this year, in July only, we organize this for 10 days, and this has emerged as the world's first 10-day digital live conference. Besides this, we also organize International Film Festival SIFI. Last year, during this Corona period, we organized it in December 2020, and it was in the hybrid mode. And we are again going to organize it this year in December. Besides that, we organized the Media Fest, which we have converted as Media Convention or the Convention of the Media Students with the name Vritika. And then we also organize a monthly lecture series, which is called BG Varghese Lecture Series. It has been instituted in the name of the renowned journalist BG Varghese. Now coming back to this program chat show, this Face2Face, as I was telling you that there are three students with me in this program. So in every edition, three different students are joining this program. And these are the students who are picked up from different years. Like in this episode today, we have students from 2018 batch, 2019 batch, and 2020 batch. Let us have a look as to who all are there in this episode with me.
Welcome again to Face to Face. Now we all know who all are there with us in this episode. So we have Udit Kumar with us, who is from 2018 batch. And then we have Ayushi Verma with us, who is from 2019 batch. And then we have Khushi Chaudhary, who is from 2020 batch. Now, two students, particularly Udit, if I can tell you, he was there in the last year's face-to-face also, and we are happy to see him again in this program. And he is one person who has been most active in DME Media School. Any activity you name, and Udit was always there, be it poetry recitation or whether it is the debate competition or any such thing, he was always there. Now, he is practically passed out from DME in the sense that he has appeared in his final examination and he has already started working. And as it is customary in this face-to-face program, we start talking to the senior most person first. So initiating this interaction with Udit first. So Udit, you have been there in DME for 3 years, and most of this period has been in the physical mode, wherein you were there on the campus and were participating in activities in a face-to-face mode. But for the last almost 1.5 years, you have not been there in the campus. So if I ask the first question to you, which is directly pertaining to this COVID-19 situation. Now, during this period, like many of us, you would have faced at your personal level, at the level of your family or relatives or the people who are close to you. So how will you narrate your experience during this COVID-19 period, since the time it has struck us all? Can you elaborate on that? Sure, sir. सबसे पहले सर आपको थैंक यू कि दोबारा मुझे इस शो में आपने इनवाइट किया। अगर मैं अपने कोविड की फेज को बताऊं तो ये काफी ज्यादा भयावह रहा था, बट यही है कि सबको इससे एक पॉजिटिव वे में निकलना था। सबसे पहले हम अपनी कॉलेज की बात करेंगे कि कॉलेज में जो चीजें हमें ऑफलाइन थी, क्योंकि आपने देखा हमें हर वीक कोई ना कोई एक्टिविटी करवाई ही जाती थी, या तो आप हमें बोलते थे या बाला मैम बोलती थी। लाइक हमारे मीडिया स्कूल में हर वीक कुछ ना कुछ स्पेशल तो होता है। लाइक मीडिया भी स्कूल के कोई बच्चे बोर नहीं हो सकते थे, हम लाइक उलझे हुए रहते थे चीजों से। तो कहीं ना कहीं एक आदत पड़ गया था कि नहीं ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है। और सारी ऑलमोस्ट चीजें हमारी प्रैक्टिकल थी, अचानक ऑनलाइन आया। अब चीजें ना अचानक से बदल गई थी, लाइक एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, एडजस्ट ही नहीं किया जा सकता था। फिर धीरे धीरे, मुझे आज भी याद है मीडिया लॉ एथिक्स की सब्जेक्ट थी, मैंने आपको बोला था सर ये तो काफी हार्ड सब्जेक्ट है, मेरे से नहीं होगा। फिर आपने समझाया था कि नहीं हो जाएगा, ऑनलाइन चीजें हैं मैम, अच्छा पढ़ाएंगी। तो सारी चीजें सही चल रही थी। फाइनली मैंने एक चीज नोटिस किया कि जो हमारे एजुकेशन के तरीके जो बदले, हमें जो मेरा कॉलेज था लाइक इस तरीके से सामने रखा कि बच्चे ना उससे लाइक निकल पाए फिजिकल वाले चीज से, कि हाँ ऑनलाइन कोई ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं। नॉलेज नो डाउट बहुत अच्छा है, अभी सेमेस्टर के मार्क्स आए हैं, मार्क्स भी काफी अच्छे हैं। और इवन मैं अपने किसी भी फैकल्टी की तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि किसी की भी तारीफ करना यहाँ पे गलत हो गया। हर कोई यहाँ पे एक से एक बेस्ट निकले। पर्सनली मैं बात करूँ तो आप लोगों को काफी सपोर्ट मिला है। पहली बार जब आया था अतुल सर थे, अतुल सर का काफी सपोर्ट मिला। अभी वो कॉलेज में नहीं है, लेकिन आज भी मैं उन्हें भूल ही नहीं सकता, आज क्या लाइफ में नहीं भूल सकता। तो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं। पर अगर कोविड की बात करूँ तो लास्ट सेमेस्टर में मुझे आज भी याद है, मुझे खुद कोविड हो गया था। मैंने बाला मैम को बोला था कि मैम ऐसे ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, असाइनमेंट्स थोड़े लेट हो रहे हैं। तो मैम ने बकायदा बड़े प्यार से कहा कि तुम टाइम लो, पहले ठीक हो, देन आगे पीछे टाइम तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। बट ऐसा नहीं कि तुम्हारी सेमेस्टर खराब हो जाएगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि सेमेस्टर खराब ना हो जाए। तो नो डाउट टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया। इवन मुझे आज भी याद है, सुकृति मैम हो या फिर उसके पहले प्रमोद सर हो, रात के 9-9 10-10 बजे तक कोई टीचर गाइड नहीं करते। वो आपको पढ़ा रहे, मतलब ये नहीं कि आपके पर्सनल लाइफ में कभी भी आप उठ के कॉल कर लो गाइड करेंगे, हमें मिला है गाइडेंस। लाइक ये बात आज मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो सारी चीजें एक बच्चे के लिए मैटर कर जाती है कि एक टीचर अगर रात को 10 बजे भी आपको सपोर्ट कर रहा है, इवन
आपको भी मैंने 8-10 बजे मैसेज किया, हालांकि डर लगता था करने के पहले कि सर क्या सोचेंगे, बट कई बार कर दिया है। तो नो डाउट अगर आप फ्री रहते थे, इवन आपने भी रिप्लाई किया, ये सारी चीजें हैं। और अगर मैं अभी की बात करूं तो जब से कॉलेज छूटा है ना, मुझे वापस कॉलेज वाला लाइफ चाहिए, क्योंकि अभी लग रहा है जैसे बहुत कुछ ऐसा आप लोगों से जो सीखना था जो नहीं सीख पाया। और नहीं नहीं, हमें तो वो तो कभी भी है, ऐसा नहीं है। ये तो एक फॉर्मल सेटअप है कि जहां पर 3 साल के बाद तुम्हें बाहर जाना ही है एंड यू हैव टू वर्क आउटसाइड। यू कैन नेवर रिमेन इन द कॉलेज ऑल योर लाइफ, बट देन द कॉलेज इज योर्स, यू आर ऑलवेज वेलकम। जब आना है तब आओ, और होपफुली जल्दी ही हम फिजिकल मोड में होंगे और इस ऑनलाइन से मुक्ति मिलेगी। हालांकि वो मिली नहीं है। नाउ इट विल बी ए टाइम वेयर इन इट विल बी ए ब्लेंडिंग ऑफ द टू, बट अदरवाइज जब भी आना है तब आओ, यू आर ऑलवेज वेलकम। यस सर, लाइक बीच में मैं एक बार आया भी था, मैं कृष्णा मैम से मिला। लाइक वो वाली जो वाइब है ना पहले वाली की, हम आते थे, एक टाइम था। क्योंकि एक चीज अच्छा लगता था, मुझे आज भी याद है, हमें महीने में 1 या 2 बार किसी न्यूज चैनल के डिबेट में भेजा ही जाता था। गाड़ी आती थी, पिक करती थी सारे बच्चे, एक स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर बनता था। ये वाली चीजें ना सर 1.5 साल में खो गई थी, और लिटरली से हमने बहुत मिस किया। नई अभी नए बच्चों के लिए ये सारी चीजें शायद नहीं हो, बट मुझे उम्मीद है कि जैसे ही फिजिकल वाली सारी चीजें आएंगी तो बच्चों को मिलेगा। क्योंकि कभी सही बताऊं, वैसे बोलना नहीं चाहिए, एज अ स्टूडेंट पहले मुझे लगता था क्या मिलेगा, जब चीजों को जाना, परखा, समझ में आया, हमें पता चला कि नहीं, ये जो कोर्स आप लोगों ने स्ट्रक्चर किया है बहुत ज्यादा सोच समझ के किया गया है। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से कि पहले आप ए नहीं सीखोगे तो बी नहीं सीख सकते, और बी सीखोगे तभी सीख सकते हो। और ये सारी चीजें कब समझ में आने लगी, जब लास्ट ईयर में हम लोग पहुंच गए और निकलने वाले थे, तुरंत नहीं समझ में आ रहा था। तो लाइक अगर जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जूनियर है, बस मैं उन्हें एक ही मैसेज दूंगा कि यार कुछ करो ना करो, आंख बंद करके अपने कोई भी प्रोफेसर, कोई भी टीचर, डीन हो, एचओडी हो, अगर वो बोल रहे हैं तो तेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं। हाँ, कई बार कड़वा लगता है सुनने में, क्योंकि तुम परफेक्ट नहीं होते, उनके एक्सपेक्टेशन में तुम खड़े नहीं उतरोगे, वो एफर्ट्स मारेंगे तो सामने वाले को बुरा लगता है कि यार इतना एफर्ट्स मार रहा हूँ, मार रही हूँ, नहीं कर पा रहा है। डांट भी सकते हैं, लेकिन इतना जानो जितना ज्यादा तुम्हें डांट पड़ रहा है मतलब तुम उतने ही उन्हें तुमसे उम्मीदें हैं। तो डांट को हमेशा पॉजिटिव वे में लो, तभी आगे बढ़ पाओगे। लाइक मैं अभी बताता हूँ, मैंने लाइक कृष्णा मैम से मेरी बात होती थी कि मैम कॉलेज के बाद क्या करूंगा नहीं करूंगा, तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि इंटर्नशिप करना, कुछ ना मिले तो जो दिल करे वहाँ जॉब करना। तो लाइक मैंने फ्लिपकार्ट में टेक मैनेजर में अप्लाई किया था। अभी मुझे जॉब को 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ में मैंने अभी प्रमोशन पा लिया वहाँ पे, अभी SMU फ्लिपकार्ट का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो लाइक एक जर्नी जो बोलते हैं ना कि कॉलेज से उठ के तुरंत जॉब में आना, ये एक अचानक इतने जल्दी हुआ कि लाइक मैं शायद अभी भी ना कंफ्यूज हूँ कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ या लाइक जॉब पर्सन हूँ। नहीं ठीक है, ये तो ट्रांजिशन का पीरियड है, ये हर एक की लाइफ में आता है। सो मूविंग ऑन टू आयुषी, आयुषी, आई विल पुट अप द सेम क्वेश्चन टू यू। इफ आई आस्क यू टू नरेट योर स्टोरी of the experience that you got during this COVID-19 period, and if you were impacted by this yourself or your family members, your parents or your brothers, sisters, your relatives, how did you, I mean, what all happened and how did you dealt with this all? सर सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमें इनवाइट किया इस एपिसोड में। और सर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा तो हम बहुत खुश हो गए थे कि कॉलेज बंद हो गए तो घर पे बैठेंगे, लेकिन होता रहा, बीतता गया, बोर होने लगे कि आखिर घर में है क्यों। उस दौरान जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था मेरे फैमिली मेंबर्स भी, हम 4 मेंबर्स हैं, सब बीमार हो गए थे, गैप में सब बीमार हो गए थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम में से किसी ने भी अपनी विल पावर नहीं छोड़ी थी। ये लगता था उस टाइम, क्या था, न्यूज आ रही थी कि क्वारंटाइन में पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो मन में बस यही डर रहता था कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि बाहर पड़ोसी ये कहे कि इन्हें कोरोना हो गया, क्वारंटाइन में ले जाओ इन्हें। तो सर उस वक्त हम बस घर में ही रहते थे और मतलब काफी माइंड परेशान भी रहता था। थोड़ा थोड़ा सही हुए, फिर थोड़ा बहुत मैंने अपनी कंटेंट राइटिंग शुरू करी, थोड़ा थोड़ा एंकरिंग भी करती थी, भाई का यूट्यूब चैनल था उस पर भी थोड़ा बहुत ट्राई करती थी मैं। और फिर धीरे धीरे जब सेकंड लॉकडाउन लगा तो उस वक्त कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श थी। मेरे फैमिली में से एक मेरे ताऊ जी और एक मामा जी की डेथ भी हो गई थी कोरोना की वजह से।
उस वक्त जो मेंटल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थी, और सिर्फ मेरी ही नहीं, मम्मी की, पापा की, भाई की, सभी की बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थी। लेकिन अब धीरे धीरे उन चीजों को अब पॉजिटिव वाइब्स ला रहे हैं, धीरे धीरे अब सही हो चुका है अब तो खैर। अब लेकिन बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी, जब भी गली के बाहर जाते थे लगता था कि आज इसकी डेथ हो गई, आज उसकी डेथ हो गई। अब थोड़ा सा सही है, और मैं क्लासेस भी डेली ही, और चीजें समझ में भी आए। और जब 5th सेमेस्टर में अब आई हूँ तो माइंड में एक प्रेशर सा धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ, मतलब पोर्टफोलियो भी अपना कलेक्ट करना है, और धीरे धीरे मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है इसलिए। Thank you, Ayushi. Now moving on to Khushi. Khushi, I mean, your batch is such who has not experienced the classes in the physical mode since the time you people have entered, because your admissions got delayed last year, and when your semester started, within 3 months your exams will be there. There is a positive side, no doubt, that within 7 months or so you have completed 2 semesters, so that your backlog is clear to some extent. This is really one good thing which has happened, and the university has taken initiative about this. But the impact of COVID-19 on your life and on the life of the people who are close to you, how will you narrate this whole experience? Good evening, sir, and thanks for inviting me. Basically, sir, first जब लॉकडाउन हुआ था लगा था कि हाँ एक्साइटिंग होगा, चल रहा है, आराम से चलेगा। बट जब ये था कि कॉलेज मिलेगा, कौन सा मिलेगा, तो मेरी एंट्रेंस में फर्स्ट लॉकडाउन हमारा तो निकल गया था। एंड देन कॉलेज में एडमिशन हुआ, हमें लगा कि लॉकडाउन मतलब कोरोना थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं, और फिर ऑनलाइन ही सब चला। वी थॉट कि बहुत एक्साइटिंग होगा, कॉलेज जाना है, बट सर ऐसा कुछ रहा मेरा एक्सपीरियंस। और फैमिली में लेकिन जो खुशी, जो तुमने एडमिशन की बात की, तुमने जो अपना सीईटी दिया वो लॉकडाउन के पीरियड में दिया, और उसके बाद देन यू कंप्लीटेड होल एडमिशन प्रोसेस ड्यूरिंग दैट फेज. सो हाउ डिड यू डिसाइड एज टू वेयर टू टेक एडमिशन एंड हाउ टू टेक एडमिशन? व्हाट ऑल इज टू बी डन सिंस द थिंग्स वर नॉट ओपन दैट टाइम? सर फर्स्टली तो कोर्स चूज होना था कि कौन सा करना है कौन सा नहीं. सो आई हैव 2 ऑप्शंस. सो सेकंड वन वाज द बीजेएमसी. सो आई अप्लाइड एंड आईपी यूनिवर्सिटी का देन एंट्रेंस एग्जाम होना था. आई चेक द सिलेबस, मैं बुक लाई कि हाँ प्रैक्टिस करना है, एंड देन एग्जाम डे था. तो उस दिन तो ऐसा था कि मतलब पूरा मतलब फुल ऑन कोरोना जिसे कहते हैं वो उस टाइम था, और जाकर फिर एग्जाम देकर आना था. तो वापस आकर ऐसा लग रहा था कि कहीं कोरोना ना हो जाए, क्योंकि इतने पीपल थे वहां पर, साथ में बैठकर एग्जाम निकल गया. और फैमिली में तो गॉड ब्लेस कि सब अच्छा रहा, किसी को कोरोना नहीं हुआ. तो तुम, I mean, you were lucky in getting the college of your choice or not? Yes, I am lucky. मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया. क्या चाहिए था तुम्हें? सर मुझे डीएमई कॉलेज ही चाहिए था बेसिकली, क्योंकि ये और जेम्स यही मेनली बेसिकली जो थे वो टॉप कॉलेजेस में थे बीजेएमसी के लिए. सो आई थॉट कि डीएमई मेरे घर के पास भी है, तो पेरेंट्स बोलते कि डीएमई, सो आई गॉट दिस. Yeah, so you were telling us about your experience of this corona period. Yeah, go ahead. So basically कोरोना में फर्स्ट फेज तो हमने अपना होम टाउन में अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करा. लगने वाला था, हम अपने घर वापस आ गए, एंड देन फैमिली के साथ एंजॉय करा, लेट नाइट तक मूवीज देखी फैमिली को. और मतलब फैमिली के साथ इतना टाइम कभी स्पेंड नहीं करा था जितना लॉकडाउन में करा. और बेसिकली सबने मतलब प्लांट्स का करा एंड मूवीज देखना, ये सब फैमिली के बारे में जानना. और मेनली कुकिंग का इतना चला, सबने पेंटिंग्स करी हैं बैठकर, लूडो खेला है, कैरम खेला है, ये सब. सो सर फेज निकल गया वो तो. अब थैंक गॉड कि सब नॉर्मल पे होता जा रहा है. So do you feel that it was an opportunity which you availed because you belong to Delhi, so you were in your hometown? So one side of the whole story is that you are with your family members so long since the time this has happened. So on one hand you have been missing your campus life, but on the other hand you are enjoying your family life. How do you put it?
सर दोनों ही बातें हैं कि अगर मतलब ये होता कि फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा अगर उतना तक रहता ना तो अच्छा लगता कि हाँ फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो गया और फिर कॉलेज लाइफ भी कैंपस पे मतलब ऑफलाइन सब मिल जाता, तो दोनों चीज होनी चाहिए थी। बट पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा एक्सटेंड होता चला जाएगा, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितना फिर सेकेंड वेव आ गई। सो ये बढ़ता ही चला गया, फिर हमें लगा ओपन होगा बट हुआ नहीं। Okay, so moving on to Udit again. Udit, you are one person in your batch, particularly if I talk about, who has almost 50-50 experience or even more than 50% experience of classes in the physical mode and less than that in the online mode, right? So if you compare the kind of education which can be imparted in both the tools, in both the modes, whether physical mode or the online mode, how will you compare between the two? लाइक सर मेरे सेंस से तो कंपेयर किया नहीं जा सकता क्योंकि दोनों मेरे लिए बेस्ट रही, क्योंकि मैंने आधा आधा दोनों खुद एक्सपीरियंस किया है दोनों को। लाइक अगर मेरे सोच से देखा जाए तो फिजिकल वाला ज्यादा बेहतर था। हमें सीखने को चीजों मिल रही थी और सबसे ज्यादा मजा ये आता था ना कि लाइक डीएमई ना हमेशा इवेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत आगे रहता है। लाइक मैंने अपने ये 3 साल में तो फेल कर लिया। लाइक हर हफ्ता हम बिजी होते थे, तो जो फिजिकल चीजें आप कर रहे हो और करने में गलतियां होती हैं, और गलतियों के बाद आज भी मुझे याद है कि आप कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो एक मीटिंग लेते थे हर बार, तो उसमें चीजें गाइड की जाती थी कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, या फिर अगले बार ये चीज ऐसे करेंगे, इस बार हमने यहाँ से ये सीखा, हमने ये जाना। तो इससे ये चीज अच्छा लगता था कि लाइक हमें गलतियां करना अलाउड था एक तरीके से, लाइक ब्लंडर नहीं कि हाँ आप गलती करो क्योंकि गलतियां तो लोगों से ही होती है, बट उसके बाद हम सीखते थे और अगले बार हमारे डीएमए में खास थी बात कि अगले बार हम वो गलती नहीं करते थे। नो डाउट अगले बार हो सकता है कुछ और गलती हो जाए जिससे हम सुधारें या फिर बेहतर को बेहतरीन बनाए। तो ये वाली चीज। और ऑनलाइन में क्या था, अभी हमें याद है लास्ट टाइम वृत्तिका हुआ था, नो डाउट मैं भी पार्टिसिपेट किया था, बहुत मजा आया। बट वही है ना कि लाइक हमने फिजिकल वाले को देखा था तो फिजिकल वाले को भूला नहीं जा सकता। बट ये बात है कि जितना लाइक हमने उसके पहले ना ऑनलाइन वाली चीजें कभी फील ही नहीं करी थी। लाइक मेरा वो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे ये नहीं पता था, मैं सोचता था कि लाइक कैसा जाएगा नहीं जाएगा। तो एक चीज हमने देखा कि लाइक जो भी मैनेजमेंट की गई, चाहे वो क्लासेस करवाने का तरीका, चाहे वो इवेंट्स को, लाइक एक चीज सबसे खास लगी मुझे कि हमारे कॉलेज ने कोई भी इवेंट को जाने नहीं दिया, डिले नहीं हुआ, जो जिस टाइम पे होता था बकायदा उसी टाइम हुआ, भले एक दिन आगे या पीछे हो बट हुआ जरूर। और जितने धूमधाम से, जितने लाइक हमारे लिए इवेंट ना, जैसे वृत्तिका की बात करूं, आइकन की बात करूं, सीफी हो गया, ये हमारे लिए पर्व और त्योहार है कॉलेज का। लाइक ये हमारे लिए सबसे बड़ा कुछ है। लाइक प्लानिंग चलती थी 1 महीने 15 दिन 20 दिन पहले, क्योंकि ये चीज तो आपको भी पता है क्योंकि आप ही के गाइडेंस में हमने सब कुछ किया है। तो लगता था कि हाँ भाई अब कुछ होने वाला है यार, ये आने वाला है, ये आने वाला है। तो ये एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि ऑनलाइन थे तो बच्चे मिल नहीं पाते थे, और फोन में एक दूसरे से कितनी ही बात हो जाए, बट सामने होते तो एक मजा आता था। फिर ऐसा होता था लाइक मैं सही बताऊं, ऑनलाइन में थोड़ा डर गया था। पढ़ाई सबसे बड़ी अच्छी ये बात लगी कि लेक्चर्स में हमें कोई कमी नहीं मिला, हमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिले, हमें इवन एक्स्ट्रा क्लासेस मिले कोर्स कंप्लीट होने के बाद। इवन इतने अच्छे से पढ़ाया गया ना, लाइक क्या बताऊं, शायद उतने ध्यान से ऑफलाइन में दिया होता तो बहुत ज्यादा सीखता। यहाँ पे मेरी गलती है, इतना लाइक एक्टिव नहीं था, बट ऑनलाइन में हमें पता था कि भाई मिस तो मिस, यहाँ पे सर नहीं है मैम नहीं है जिसे पकड़ के दोबारा पूछो सर बता दो, तो हमें ध्यान देना पड़ता था। तो हमने लाइक पढ़ा, तो चीजें दोनों अपनी जगह बेस्ट है। पर्सनली बोलूं तो ऑफलाइन मजा आता था क्योंकि वहां पे एक फैमिली मिलती थी, क्योंकि बाकी स्कूल की बात नहीं करूंगा, इवन मैं डीएमई से हूँ फिर भी एक फायदा और भी था ना, क्लास में जो हरकतें करते थे वो करने का मौका मिलता था, ऑनलाइन में तो वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ना। यस सर, लाइक मैं बताता हूँ हमारे साथ क्या था कि मैं पूरे कॉलेज की बात नहीं करूंगा, डीएमई मीडिया स्कूल एक फैमिली थी। क्यों? हम सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में थे, एक दूसरे को हर कोई जानता था। लाइक एक कभी लगा ही नहीं कि कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, एक फैमिली वाला फील आने लग गया था। लाइक मैं बोलता हूँ कभी कुछ होता था बाला मैम के पास, क्योंकि आपसे थोड़ा डर लगता था, बाला मैम से लाइक थोड़ा कंफर्ट जोन वाला था,
कुछ भी होता था चले जाते थे, बाला मैम ऐसा हो गया वैसे हो गया। कई बार मैम ने हमें बच्चों की तरह भी बोला कि यार तुम छोटी छोटी चीजों को बोलते हो, खुद भी टैकल किया करो। तो लाइक मैम ने ना जरूरत आने पे एक टीचर, एक माँ और एक लाइक हर एक चीज का दर्जा निभाया है जहाँ पे हमें उनको उस तरीके से जरूरत थी। तो मजा आया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन की मैं कंपेयर करूंगा ही नहीं, क्योंकि दोनों बेस्ट थी। क्योंकि मैं पर्सनली फील करूँ तो जो एक्सपेक्टेशंस थे, क्योंकि देखिए एक बात आ गई थी यार, ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन हो गया, कुछ सीखूं ना सीखूं, चीजें कर पाऊं ना कर पाऊं, एक्टिविटी हो ना हो, असाइनमेंट्स कैसे करेंगे, बीजेएमसी पूरा प्रैक्टिकल का कोर्स है, अगर ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करेंगे तो सीखेंगे कैसे, प्रैक्टिकल रटने तो आए नहीं है, बहुत सारे सवाल उठते हैं जहन में। बट एक चीज था कि इतने अच्छे से असाइनमेंट्स को हमें दिया गया कि आप ये सारी चीजें करो जो घर से हो सकती हैं, जिसमें सीख, सबसे बड़ी बात हमारे हर एक्टिविटी में हमें कैसे नॉलेज मिलना है ये देखा गया। और एक चीज नहीं, मैं हर एक्टिविटी की बात बोल रहा हूँ, बाकायदा ऑनलाइन में देखा गया। बट यही है कि मैं ऑफलाइन वाला था तो मुझे ऑफलाइन से थोड़ा सा प्यार है। तुम ऑनलाइन वाले आदमी हो भी नहीं ना, तुम्हें तो एक खुला स्पेस चाहिए ना काम करने के लिए। जी। So moving on to Ayushi, if I ask the same question to you, online versus offline, you were there in the college for 1.5 semester, and then this 2.5 semester has gone into online, and now you are in the 5th semester. So if I ask you to make this comparison, which you enjoyed more, online or offline, and what are the merits and demerits between the two when you look at both the modes of education? सर अगर हम ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड की बात करें, जब मैंने डीएमई में एडमिशन लिया था मेरे माइंड में यही था कि सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, जब ऑन द प्रैक्टिकल वर्क होगा उसमें जो एक्सपीरियंस मिलता है ना सीखने का, वो इस ऑनलाइन मोड में नहीं है। जो एक मजा था इधर घूमना उधर घूमना, लोगों को देखना, एक्सपीरियंस करना कि आखिर वो किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से खड़े हैं, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो ऑफलाइन में ही था। सर जब ऑनलाइन आया, हमने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करी सर, बहुत सबसे पहले तो मुझे ये दिक्कत हुई कि एक तो मुझे प्रैक्टिकल्स लग रहे हैं तो उसमें मुझे आईज में बहुत दर्द रहता था ऑनलाइन में। सर ये चीज बहुत बेकार लगी मुझे, और धीरे धीरे लेकिन अब तो हमें हैबिट हो गई है ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन भी सही लगता है अब। Okay, so moving on to Khushi. Khushi, as I was saying this already, your batch is online only. I mean, you have not experienced the college or the campus life. You would have come once or twice for something or the other, but the kind of atmosphere which anybody looks for in a college that you have not enjoyed. Obviously, you would have been studying in a classroom settings when you were there in the school, but then in the college, it has always been the online. But then if you look at this online education and compare this with the education that you are having in school, what are the better things or the worst thing you find in online education? सर मेनली ऑनलाइन एजुकेशन में प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल नहीं मिल पाता। मतलब टीचर्स ट्राई करते हैं कि लाइक स्टिल फोटोग्राफी हमारा सब्जेक्ट था तो उसमें कैमरा, मतलब सर ने फिर जो हमारे असाइनमेंट्स भी थे हमने वो फोन के थ्रू करे क्योंकि सबके पास डीएसएलआर नहीं होता, तो उसकी सेटिंग्स का हमें नहीं पता चला। मतलब सर दिखाते भी हैं कैमरा के थ्रू कि हाँ इसमें ये सेटिंग होती है, या फिर अगर अपर्चर सेट करना है तो इससे करो। तो सर प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें बिल्कुल नहीं मिल पाया। वो ऑफलाइन एजुकेशन में पॉसिबल है, वो ऑनलाइन में है बट बहुत कम पॉसिबल है। अगर टीचर समझा भी देते हैं तो मतलब अगर टीचर सामने फेस टू फेस है तो मतलब ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, और अगर ऑनलाइन में आधे बच्चे तो कैमरा ऑन नहीं करते तो इसलिए ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता ना फिर टीचर्स। तुम कैमरा ऑन करती हो कि नहीं करती हो? सर जब मतलब अकेले तो मतलब टीचर बोलते हैं कि ऑन कर लो, फिर सब ये बोलते हैं कि तुम करो, तो सर अकेले में तो हेजिटेशन हो जाती है कि अकेले मैं कैसे करके बैठ जाऊं। तो तुम्हें मतलब you go with the stream, you do not decide your own course of action, मतलब वेव के साथ चलती हो, जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, तुम अपना फैसला नहीं ले सकते? ट्राई करती हूँ, कभी कभी क्लासेस में ऑन कर लेती हूँ जब टीचर्स बोलते हैं, बट रेगुलरली ऑन नहीं हो पाता। बट क्लासेस तो रेगुलर करती हो ना? Yes sir, classes तो regular. So do you enjoy having classes in the online mode or not?
सर मतलब अब तो हैबिट हो चुकी है ऑनलाइन एजुकेशन लेने की, 1 ईयर से भी ऊपर हो चुका है हमें, तो ठीक है मतलब, बट ऑफलाइन हम ज्यादा प्रेफर करेंगे कि अगर कॉलेज जल्दी खुल जाए तो वी आर सो हैप्पी। चलो वी होप कि जल्दी खुल जाएगा, तो तुम्हारी यस जो इच्छा है वो जल्दी पूरी हो जाएगी. So moving on to Udit again. Udit, we all know, as I referred to in the beginning only, that you are a super active person and you have been participating in all kind of activities. But still, if I ask this question to you with regard to your interest, your hobbies, your inclinations, your passion, how will you, I mean, define this all? लाइक सर, अगर मैं इन सारी चीजों की बात करूँ तो मुझे सबसे पहले शुरुआत से डिबेट की बहुत इंटरेस्ट हुई है. हालांकि मैं पोइट्री एंड ऑल भी ट्राई किया हूँ. लाइक मेरी एक आदत थी ना कि गलत करो या सही करो, मैं ये नहीं देखता था. करना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक मैं सीखूंगा नहीं. और मेरे में ये होता था कि पहले इनिशिएट तो करो, फिर देखते हैं क्या होगा. तो नो डाउट मैंने काफी डिबेट में आगे रहने की कोशिश करी है. अभिव्यक्ति सोसाइटी हमारी है. अभिव्यक्ति सोसाइटी को 2 साल लाइक लीड करना, क्योंकि पहले एज अ पार्ट आया एंड देन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर मैंने लीड करा. और अभिव्यक्ति सोसाइटी के बारे में बताओ, क्या है ये सोसाइटी, क्या इसमें करते हो? ओके सर, अब जब मैं कॉलेज में आया था तो डिबेट सोसाइटी बेसिकली नहीं थी. तो उस टाइम पारुल मैम हमारी कल्चर हेड थी सोसाइटी की. तो मैंने बात करी थी उनसे कि मैम कोई अलग सोसाइटी होनी चाहिए जो सिर्फ डिबेट के बारे होनी चाहिए. लाइक पूरी अलग, ये नहीं कि इस सोसाइटी में डिबेट भी हो जा रही है और पोएट्री भी, क्योंकि दोनों पहले साथ में होता था. तो मैंने मैम से बात करी थी, मैम को रिक्वेस्ट किया था. तो मैम ने बोला था कि ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रोसीड्यूर होते हैं. तो जो मैम जैसे जैसे गाइड करती गई मैं करता गया. बीच में मैम चली गई. फिर ये हाँ, मोहित सर आए. मोहित सर एज अ कन्वीनर, क्योंकि मैम ने हर कुछ ये कर दिया था कि लाइक सोसाइटी आ गई थी, स्वाति मैम के हैंडओवर में हो गया था. स्वाति मैम बीबीएससी थी जो हमारी कन्वीनर थी, मैम को जाना था. तो फाइनली वो सोसाइटी जैसा मैं चाहता था कि ये सोसाइटी बकायदा बीजेएमसी रन करे, क्योंकि बीजेएमसी से मैं खुद था. तो मोहित सर ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया. और मैंने एक चीज फील किया कि फर्स्ट ईयर में जब सोसाइटी थी नहीं, सेकेंड ईयर में हम लोगों ने बनाया खुद. लाइक कॉलेज के वेबसाइट में आना, इवेंट्स होना, उसकी फोटोज अपलोड होना अपने में बहुत मैटर करता है कि लाइक एज ए स्टूडेंट हम लोगों ने कुछ किया. वो अब दिख रहा है वेबसाइट में, क्योंकि कॉलेज के वेबसाइट में कोई भी चीजें नहीं डाली जा सकती, राइट. तो अगर कुछ अच्छा किया हमने और वो टीचर्स को भी लग रहा है कि हाँ ये चीज दिखाया जा सकता है, तभी वो डाला जा रहा है. तो ये हमारे लिए एक सक्सेस की बात थी. फिर स्वाति मैम की गाइडेंस के अनुसार क्या होता है, यहाँ डिबेट हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, करते रहना. लाइक मुझे आज भी याद है, सेकेंड ईयर में मैंने पूरे साल में 18 डिबेट्स जीते हैं अभिव्यक्ति के लिए. 18 एक सही में अच्छा नंबर है. मैं आयुष गोयल एक भैया है जिन्होंने 23 अवार्ड जीता है, उसे फेल करना चाहता था. शायद उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कुछ डिबेट नहीं जा पाया, या फिर कुछ हार गया. लाइक हार और जीत तो होती ही है. तो 18 में उससे काउंट करो जिसमें एटलीस्ट मैंने टॉप थर्ड आया है. लाइक एक नाम मेंशन किया गया कि हाँ विनर हो, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो. तो पूरे साल में 18 कप जीत के पता नहीं चली. जब हमने सर्टिफिकेट देखा या फिर अवार्ड देखा तो लाइक एक लगता है यार कॉलेज में कुछ तो हमने किया है, कुछ तो मिला है. क्योंकि सबसे बड़ी बात बीजेएमसी से होना और इतनी अच्छी गाइडेंस होना, मजा आ गया. दूसरी अगर हॉबीज की बात करूं तो डिबेट में हमेशा से इंटरेस्ट रहा. और मेरी चीजें ये थी ना कि आपको एक चीज में मैं फॉलो करता था कि आप पुरानी चीजों में जो चीज नहीं सुधार पाए या फिर जो चीजें आपको नहीं पता थी वो छूट गया, राइट. तो नई चीजों में आप कैसे उसे सुधार के उस चीजों को ओवरकम करके आगे बढ़ सकते. क्योंकि मुझे पता थी कि कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट नहीं की जा सकती है. सोसाइटी बनी है, नई बनी है, नो डाउट टीचर्स का सपोर्ट है, बच्चे हैं. हमारी ग्रुप 20 की हो गई थी, 20 के 20 मेंबर एक्टिव थे. तो ये मैटर करता है. तो लाइक हमने डिबेट के अलावा और कोई चीज जो तुम बताना चाहोगे? जी, कॉलेज की पर्सनल बात करूँ तो सर सबसे ज्यादा मुझे एक्टिविटीज में मजा आता था. स्टिल फोटोग्राफी की आज भी मुझे याद है, क्लास में अलग अलग फ्रेम बनवाते थे सर. हरजीत सर हमारे थे. अजीब अजीब टाइप से पोज डलवाना, कैमरा का सैचुरेशन दिखाना, किस जगह पे कैसे हो सकता है, ये सारी चीज. सबसे ज्यादा मजा कि हमारी लाइब्रेरी है. लाइक अक्सर मैं उसमें ना पहले तो नहीं जाता था, झूठ नहीं बोलूंगा, लाइक एज अ स्टूडेंट की कुछ भी बोल रहा है. जब हमारा नया लाइब्रेरी बना ऊपर वाला,
तो मैंने कुछ इन दोनों कुछ चीजें देखी कि यार यहाँ पे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लाइक अपने अपने इंटरेस्ट होती है फील्ड में कि आप ये पढ़ोगे, हर कोई हर बुक नहीं पढ़ता, तो मेरे टाइप की चीजें, लाइक वैसे तो सबके लिए, मेरे टाइप की चीजें वहां पे मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता था कि डीएमई का स्टूडियो और लाइब्रेरी इतना बड़ा और इतना बेहतर हो सकता है, लाइक नहीं सोचा था हमने कॉलेज में आने के पहले, क्योंकि मैं कॉलेज विजिट नहीं किया था। मुझे लाइक जैसे कुछ फीडबैक्स लेना दोस्तों से, जब मैं आ रहा था कॉलेज तब की बता रहा हूँ, तो ऐसे करके मुझे लगा कि नहीं, बेस्ट कॉलेज मिल रहा है भाई, ले लेना चाहिए। और पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सीनियर भी यहाँ से पास आउट थे, तो उन्होंने बोला ले लो। आ तो गया था बट नहीं पता थी। 1-1.5 साल में जो मैंने चेंजेस देखा लाइब्रेरी में, बुक्स देखा, वो लाइक मुझे सही बताओ, मेरे जैसा लड़का, मैं हंसता हूँ आज भी कि मैं आधा आधा घंटा रोज लाइब्रेरी में बैठा हूँ। लॉकडाउन जब लगने वाला था उसके पहले, क्योंकि एक चीज बड़ा अच्छा लगता था बाला मैम का कि हमारी क्लासेस 3 बजे ओवर हो जाती थी, बट मैम ने कभी ये नहीं बोला कि तुम 4 बजे तक मत रुको, 4:30 बजे तक मत रुको, हमें छूट थी। बस बकायदा हम तो कोई सही काम कर रहे हो। तो किस तरह की किताबें, किस तरह की पुस्तकें तुम्हें पढ़ना पसंद है? क्या पढ़ते हो? क्या ताजा कुछ पढ़ा है तुमने? सर इन दिनों तो वैसा कोई पढ़ाई से रिलेटेड टाइम नहीं मिल पा रहा जॉब के कारण, बट मैं पास्ट की बातें बोलूँ तो मुझे काफी पसंद थी लाइक मीडिया रिसर्च। जब नया नया सब्जेक्ट आया था उसके पहले भी मैं सुना था, क्योंकि एक आदर्श नाम के भैया थे, हमारे सीनियर थे, शायद आपको आदर्श हाँ याद है। हाँ बात होती, उन्होंने सजेस्ट किया था, जो मैंने टॉपिक लिया उनके ही सजेशन पे लिया था कि यार उधर तुम इस पे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ बुक्स बताए थे कि ऐसे देखो ऐसे देखो, क्योंकि सही बताऊं मीडिया रिसर्च लेने के पहले बहुत घबराया हुआ था, नाम सुनकर ही हार्ट लगता है। तो लाइक जो हमारे सेमेस्टर आने वाली थी ना, उसके पहले मैं कंटेंट देखता था, मतलब नो डाउट चीजें नहीं समझ में आती थी पूरी, बट इतना भी नहीं था कि पूरा जीरो, कुछ तो आता था। और फिर सबसे बड़ी ये चीज लगी कि वहां पे हमें डिजिटल, लाइक हमारे जितने कोर्स हैं, कोर्स के ऑलमोस्ट सारे अलग अलग राइटर के बुक मिल रहे थे। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार आया था, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, कम्युनिकेशन की सब्जेक्ट थी, उसके 2-4 बुक्स मिलना, लाइक किस थ्योरी को कैसे पढ़ना, लाइक इतना सही बताओ, ऑफलाइन सबसे पहले मजा आ गया। दूसरा, नहीं चाहता था इतने जल्दी कॉलेज निकलने का, कम से कम 5 साल का तो कोर्स होना चाहिए था, मतलब मास्टर्स भी एक साथ होना चाहिए था। नो डाउट अगर डीएमई मास्टर्स कराते मैं जाने वाला नहीं था। तुम्हारे उदित, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स हो तो फिर कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन उतना इंटरेस्ट लेने वाले, उतना एक्साइटमेंट फील करने वाले स्टूडेंट्स भी तो चाहिए। तो अब आओ, जैसे ही खुलता है वैसे हम तुम्हें बुलाएंगे, एंड यू कैन नरेट योर होल थिंग्स टू द जूनियर्स सो दैट दे आल्सो गेट एक्साइटेड द वे यू हैव बीन एक्साइटेड ऑल थ्रू। थैंक यू सर। लाइक सही बताऊं, मैं अभी ओवरकम नहीं हो पा रहा अपने कॉलेज के लाइफ से, चाहिए था वापस। नहीं, यही चाहिए, यही स्पिरिट चाहिए। आई विश कि इसी तरह की जो जील है, जो एंथुजियाज्म है, जो स्पिरिट है, वो सभी के पास। सो मूविंग ऑन टू आयुषी. Ayushi, if I ask the same question, because you are also active in various kind of activities, be it making some presentation on something or be it writing. So if I ask this pertinent question, what all are your hobbies, your passions, your inclinations, your interests? What will you tell us? सर सबसे पहले तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, उसमें तो बहुत सारी चीजें माइंड में थी, क्योंकि एक तो बहुत ही बर्डिंग स्टूडेंट थे, तो मतलब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, दिमाग में सब कुछ था। फिर धीरे धीरे पोइट्री का मुझे बहुत पहले से ही शौक है, तो मैंने पोइट्री भी लिखी, देखा कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब मैं क्लासरूम्स में जा जाके देखती थी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, सर्च करती थी कि आखिर कॉम्पिटिशन्स क्या क्या हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे जिंगल्स में आए, और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे अभिव्यक्ति सोसाइटी थी, इसमें भी मेरा बहुत इंटरेस्ट था लेने का, लेकिन मौका नहीं मिला। मैंने टीचर कोऑर्डिनेटर से भी कहा है, जब वो उन्होंने कहा है कि जब भी इसके वो होंगे इंटरव्यू, वो बुलाएंगी। लेकिन सर धीरे धीरे जिस तरह से हम अपने कॉलेज में एनहांस हुए, मैं अपने अंदर खुद भी चेंजेस देख रही हूँ कि किस तरह से डे बाय डे मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन लेवल के थ्रू। अब जैसे 5th सेमेस्टर है, अब मीडिया रिसर्च है सब्जेक्ट, और भी बहुत सारे हैं, अब पीछे हम पीआर छोड़ा है। जैसे जैसे इन्हें स्टडी कर रहे हैं ना, माइंड में ये आता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो। अब माइंड में कभी आता है कि पीआर प्रोफेशनल बन जाओ, अब माइंड में इस वक्त ये चल रहा है कि मीडिया रिसर्च है तो रिसर्च करेंगे, आईकैन में कुछ करेंगे।
तो धीरे धीरे और फिर जो टीचर सपोर्ट करते हैं ना, तो वो चीज बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है हमारे माइंड में। पहले एक मोटिवेशन जो होता है ना, वो चीजों को करने के लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, तो वो चीज काफी अच्छी लगती है सर। ओके, सो आज इस प्रोग्राम में will you present something, will you recite something, anything that you love and that anything that you want to share with everybody? सर मेरे पास एक पोएम भी है, मैं सिंगिंग भी करूंगी, मेरे पास आर्ट भी है। अब आप बताइए आप क्या देखना चाहेंगे? नहीं, जो तुम करना चाहो करो, the platform is yours. सर सबसे पहले तो मैं एक आर्ट दिखाऊंगी, दिख रही है नहीं शायद नहीं। ठीक है, ड्राइंग करती हो ना तुम? यस सर। क्या क्या ड्रॉ करती हो? एक मैंने बटरफ्लाई बनाई है, ये अभी इनकम्प्लीट है, इसमें भी कलर्स भरे जाएंगे। गुड, अच्छा, गुड। और सर और भी चीजें हैं, बाकी मैं आपको पोइट्री सुनाऊंगी। ठीक है। मैंने कोरोना पैंडेमिक थी तब उस वक्त लिखी थी ये पोएम। हौसला रखना, सिक्के का दूसरा पहलू भी आएगा, दुख के बाद सुख भी साथ निभाएगा। इस दूषित बीमारी को ईश्वर इस दूषित बीमारी से ईश्वर हमें बचाएगा। हौसला रखना, सिक्के का दूसरा पहलू भी आएगा। यह तो किस्मत का खेला है, कोई सुख में भी अकेला है, कोई गमों में भी खुशियां ढूंढे, कोई ढूंढे शांत अकेला है। यह क्रंदन और कराह वक्त अपने साथ ले जाएगा। हौसला रखना, सिक्के का दूसरा पहलू भी आएगा। इंसान का आना जाना ईश्वर की मर्जी है, इस अपराधी जीवन से आत्मा की मुक्ति है। ईश्वर की भेजी चीजों को वो अपनी ममता में ले जाएगा। इसका बुरा मत मानो, परिवर्तन रूपी जीवन आएगा। सोचो और जरा विचार करो, तू हर पल क्यों रोता है? माँ तेरा ध्यान रखती थी, पर तू स्वार्थ के लिए रोता है। आज नहीं तो कल ईश्वर हमें भी मुक्ति दिलाएगा। हिम्मत रखना, सिक्के का दूसरा पहलू भी आएगा। चलो, वी ऑल होप कि दूसरा पहलू आए और तीसरी लहर से हमें मुक्ति मिले और कॉलेजेस जल्दी खुले। तो जो सब लोग चाहते हैं, जो न्यू नॉर्मल से हट के हम बैक टू नॉर्मल पे आ जाएं, सो वी विश कि ऐसा हो और जल्दी ही हो। सो मूविंग ऑन टू यू खुशी, if I mean asking the same question to you, what will you tell us about your interest, hobbies, passions, inclinations and all? सर कॉलेज में आकर मैंने मतलब बेसिकली एंकरिंग करी है, आई कैन में करी है, विच इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लेवल। एंड सेकेंडली आई मतलब डांस सोसाइटी में मैंने पार्टिसिपेट करा हुआ है, जिसमें कि फेयरवेल के लिए भी मैंने वीडियोस दी हुई है। सो बेसिकली सर मेरा इंटरेस्ट एंकरिंग में है कि इफ न्यूज एंकर बन जाऊं तो मतलब बनना ही है वो तो सब बेसिकली वही है, न्यूज एंकर का एंकरिंग करते हैं। और तो अभी तुमने आई कैन में क्या क्या किस तरह के प्रोग्राम्स में, किन सेशंस में एंकरिंग की? सब मेनली टेक्निकल सेशंस में करी थी, मतलब मैंने 3 सेशंस करे थे टोटल। ओके, तो उसके अलावा भी, आई कैन के अलावा भी कॉलेज में जो और प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एंकरिंग करती हो? के अलावा मैंने अभी और किसी सेशन में एंकरिंग नहीं करी है कॉलेज में। So besides anchoring, what all you do, and particularly if I ask this very straight question, since as a student you have been staying at your home, so besides studies you would have been busy in so many creative things. So I'm asking about your creative instinct, your creative aspect. So what all you have been doing all through? सब मेनली मैंने डांसिंग करी है अपने लॉकडाउन पीरियड में। मैंने बेकिंग सीखा है, मैं बेक कर लेती हूँ। मतलब बेकिंग तो मुझे मतलब ऐसा है कि पैशन है बेकिंग का, और साइड बाय साइड मतलब प्रोफेशनल लाइफ में बीजेएमसी में कर रही हूँ और साइड बाय साइड में बेकिंग में कर। These two things I have done. अच्छा, इसके अलावा डांसिंग, सो डांसिंग में you learned something new or you were practicing what you were already doing? सर जो मतलब मैं अपने आप ही कोरियोग्राफ करती रहती हूँ सॉन्ग्स को, मतलब अच्छा लगता है, जो जो अच्छा लगता है वो अपने आप करती रहती हूँ। ऐसा लर्न नहीं करा, अपने आप सीखा है।
नहीं तो जो कोरियोग्राफ कैसे करते हो? डांस जो भी होगा वो ऑलरेडी जो तुम देख रही होगी वो ऑलरेडी कोरियोग्राफ्ड होगा, तो तुम उसमें क्या कुछ नया सो करने वो की तो कोशिश सॉन्ग, करते हाँ जी, अपने हो? आप मतलब सॉन्ग सुन, तो इस हम्म। हिसाब से मैं अपने स्टेप्स उसमें डालती थी। Okay. So can you perform something? Obviously, performing dance is not possible in this platform. But then, यस सर। any other thing that you can do here in this episode? Would you like to do something? सर डांस और बेकिंग दोनों ही बेसिकली मेरे थे, बट वो आई कांट परफॉर्म दिस ऑन दिस But प्लेटफॉर्म। do you write something? सर No. मतलब कभी कभी जो कोई लाइन अगर दिमाग में आ जाती है तो वो लिख लेती हूँ, लिखूं से, या फिर पोएम में। मतलब राइटिंग में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एंकरिंग में इंटरेस्ट है और इसी में ही है। तो तुम, I mean, what all you read? कुछ ऐसा, I mean, any literature, anything that you read, any books that you read? Do you do any such thing? नो सर। So what all you do then from morning till evening? सब बेसिकली क्लासेस होती हैं और फिर मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख लेती हूँ जिससे नॉलेज मिल जाती है, और थोड़ा बहुत बेकिंग कर लेती हूँ तो सर उसी में ही, और असाइनमेंट्स मिल जाते हैं तो उसमें फिर सारा दिन निकल बेकिंग, जाता तुम है। बेकिंग पे इतना जोर दे रही हो, बेकिंग कितनी करती हो? क्या पूरे मोहल्ले में बना बना के खिलाती हो नो सबको? सर, मैं सेल्फ लर्न कर रही हूँ अभी उसको, तो मुझे रोज न्यू न्यू चीजें बना के देखनी होती हैं कि इसमें क्या होगा, ये है तो इसमें मतलब न्यू में क्या कर सकती हूँ। तो सर तो इसलिए। मतलब अब तो कॉलेज जल्दी ही खुल जाएगा, तो तुम रोज बेक करके लाओगी फिर अपने फ्रेंड्स को खिलाओगी, इसका मतलब? यस सर, मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का। ठीक है, ठीक है, वो दिन जरूर आएगा। यस आयुषी ने पहले ही बता दिया है ना कि मतलब एक नया दौर भी आएगा, उम्मीद के बाद एक यस नया सर, समय भी आएगा, सिक्के का दूसरा पहलू। दूसरा पहलू भी आएगा। So back to you with again. What will you say about your career particularly? You have already started working. So अभी जो काम कर रहे हो इसको कंटिन्यू करोगे, क्या नया करोगे? What all you have decided about your career? Can you tell us about that? चली गई, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं सर? सॉरी सर, मेरी नेटवर्क चली गई थी, क्या एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अब तुमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो अब तुम इसी काम को आगे जारी रखोगे, कुछ नया करोगे करियर में? आगे क्या प्लानिंग है, क्या करने की कोशिश करोगे? जी सर, काफी काफी अच्छी और बड़ी चीज आपने पूछ दिया, लाइक क्योंकि इन दिनों यही सारी चीजें निकलती है जहन से कि क्या करना है, कैसे करना है। तो लाइक फ्लिपकार्ट में ज्वाइन करना इज माय स्टार्टिंग फेज, राइट नाउ। मैं फ्लिपकार्ट में एक नॉर्मल लेवल पे ज्वाइन करके आज उनका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर मैं कुछ भी करूँ शिद्दत से तो मैं बेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि नॉर्मल एजेंट लेवल से उठ के उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाना, उस पूरे प्रोसेस का एक्सपर्ट कहलाना। लाइक क्योंकि आपके पास एक टैग होता है कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर से हमारी जो ग्रुप थी, क्योंकि मैं आउटसाइडर था तो मैं यहीं पे 62 में फ्लैट लेके रहा करता था। हमारी एक छोटी सी ग्रुप थी, मैं, गजेंद्र, मोहसिन, शांतनु, राहुल, ये सारे बीजेएमसी के बच्चे, आप सबको जानते हो। तो हमने प्लान किया था कि लाइक अपने स्टार्टअप करेंगे एंड ऑल। तो लाइक ये चीज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने स्टार्टअप कर दिया। 63 में एक ऑफिस भी हमारी है अभी, जिसमें 4 बंदे हमने हायर भी कर रखा है। हमारी प्रोडक्ट नेक्स्ट 2 मंथ में लॉन्च भी होने वाली है। हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जो अलगी बेस्ड एयर प्योरीफायर है, जो पूरी एशिया का सिंगल प्रोडक्ट है। आज तक ऐसी कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनी। लाइक अगर आप गूगल करोगे, जितने भी न्यूज चैनल है, एनडीटीवी से लेके इवन जितने भी हैं, ऊपर के जितने 10-12 साइट्स आएंगे, सबने हमें कवर किया है। बस अलगी बेस्ड एयर प्योरीफायर लिखना है, सब सारी चीजें। इसका मतलब तुम प्रधानमंत्री जी की बात मानते हो कि तुम नौकरी ढूंढने वाले नहीं हो, नौकरी लेने वाले नहीं हो, नौकरी देने वाले रोल में हो? सर कोशिश तो है, क्योंकि लाइक मेरा मानना है कि अगर मैं दिन के 12 घंटे काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस एज में 12 घंटे इज नॉट अ बिग डील, किया जा सकता है। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 12 घंटे काम करते हो? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं दिन की 12 घंटे काम करता हूँ और मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो उस 12 घंटे में सिर्फ अपनी घर और अपनी ड्रीम बना पाऊंगा। बट अगर मैं 12 घंटे अपनी कंपनी में काम करता हूँ और लोगों से काम कराता हूँ, तो इस 12 घंटे में मैं एटलीस्ट 12 लोगों की ड्रीम को पूरा कर पाऊंगा। और
इस चीज को पूरा करने की ड्रीम रखना ना सर, लाइक अपने में बड़ी बात है। आई नो ये 3 साल में मैंने इतने फेलियर्स देखे, नहीं मिल रहे थे इन्वेस्टर्स, इवन ऑफिस खड़ा हो पाएगा भी कि नहीं नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। हमने बहुत हार देखा, लाइक चलो कुछ अच्छी चीजें बात है, अच्छी बात है। अभी ये बहुत अच्छी बात तुमने बताई कि यू हैव बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड देन यू आर वर्किंग इन ए मैनर वेयर इन नॉट ओनली यू बट सो मेनी अदर पीपल कैन बी बेनिफिटेड. In fact, this country needs the youth like you who can take care of others also and who can help in the development of the society. Thank you, Udit. Moving on to you, Ayushi. What will you say about a few things you were telling us already, that sometime you feel that you will become a PR professional or you might be going into writing? What all you have planned for your career? सर सबसे पहले तो हमने ये सोचा है कि जो 1 साल बचा है अभी कॉलेज का, उसमें जितना से ज्यादा मैं अचीव कर सकती हूँ, उन चीजों को मैं अचीव करने की कोशिश करूंगी सबसे पहले तो। और सर फिर उसके बाद अगर मैं मास्टर्स में जाती हूँ या लॉ लेती हूँ, वो सर बाद में मैं देखूंगी। अभी सबसे पहले मेरा फोकस इस सेमेस्टर पे ही है। Thank you. Now moving on to Khushi. Khushi, what will you say? Though, I mean, there's a long way to go for you. You are from the junior most batch and practically you are yet to start your college, which hopefully will. Then you have a lot of time to decide what you will be doing in your career. But then going by your aptitude and interest, what would you have decided for yourself? सर मतलब जैसे जैसे कि सब्जेक्ट्स न्यू आ रहे हैं न्यू सेमेस्टर्स में, तो रेडियो जॉकिंग, आई लव रेडियो जॉकिंग। मुझे लगता है कि आरजे का वर्क मैं कर सकती हूँ। और पीआर प्रोफेशनल, बेसिकली मुझे इतनी नॉलेज नहीं अभी पीआर के बारे में, पब्लिक रिलेशंस के बारे में, बट जैसे जैसे पता चलेगा तो मुझे उसकी न्यू साइट्स पता चलेंगी कि मतलब उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी। और इवेंट मैनेजमेंट एंड टेलीविजन के बारे में, एडवर्टाइजिंग में बहुत इंटरेस्ट है कि अगर एडवर्टाइजिंग के बारे में और पता चल जाए तो और पता मुझे मीन्स कि मतलब अभी एक्सप्लोर करना है। और जैसे जैसे पता चलेगा और फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी कि हाँ ये भी अच्छा है, इसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, तो सर उस हिसाब से। तो अब कॉलेज खुल जाएगा तो तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। विच प्लेस यू बिलोंग टू एक्चुअली? सर गाजियाबाद, साहिबाबाद। यस सर। तो तुम घर से ही आओगी ना कॉलेज? घर तो तुम्हारा रहेगा, मतलब ये उदित की तरह का नहीं है ना कि घर छोड़ के आना है। इसको तो बिहार से आना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली घर में सबको छोड़ के ही आना पड़ेगा यहाँ रहने के लिए। तो तुम्हारे साथ ये समस्या नहीं है। आयुषी के साथ भी समस्या नहीं है कि उसे गाजियाबाद से नोएडा तक ही आना है। So we hope that everything will go well. Everything will be back to normal and everybody will keep his or her spirit alive. Everybody will think good for the future, and the willpower, as Ayushi was referring to, everybody will maintain his or her willpower. Everybody will work in a manner wherein not only your own development is happening, your own growth is happening, but that is ultimately leading and contributing to the development of the society, so that we all can go ahead, the country can further be on the pace of development. With this positive note, we conclude today's program. Thank you all three to be so proactive, to be so participatory, and making this program a success. Thank you all. Thank you. Thank you, sir.